So we will see what is OSI and what is TCP/IP model, and then IPv4 addressing and subnetting, but this will happen in another class. Okay. चल रहा है. क्या? ठीक है. उनका दी मैंने दूसरा लेके आता हूँ. प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम हो रही है. We'll see. When the network came into existence, यानी कि जब network हमने शब्द सुना, different devices couldn't communicate to each other. If you talk about in early 1960, there were two companies. One is known as IBM. You have heard about it? IBM. One is called DEC. This is called Digital Equipment Corporation. It's an American company. उसके बाद ये HP में जाके उन्होंने कर लिया उसको. So IBM, I have told you, different devices couldn't communicate to each other. For example, if a PC belongs to IBM और ये DEC का PC है, so they can't communicate to each other because they are using their own proprietary software. Nowadays we will see that Apple का PC है, Windows का PC है, तो compatibility नहीं होती उनके बीच में, है ना? क्योंकि एप्पल क्या कहता है कि मैं हर चीज अपनी यूज करता हूँ, माई ओन प्रोप्राइटरी. मेरा जो स्टोर होगा ना, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, एनीवन कैन यूज, इट्स माय स्टोर. व्हाई? उसने हर चीज सेपरेट क्यों रखी है? क्योंकि जो ओपन होती है उसमें कहीं से भी अटैक हो सकता है. जो मेरा अपना है उसमें कोई बाहर का है ही नहीं. जो ऐप बना रहा हूँ वो भी मैं ही बना रहा हूँ. दैट्स व्हाई उनका जो एप्पल का मोबाइल है वो महंगा क्यों है? वो कहते हैं कि इसमें वायरस नहीं आएगा. व्हाई? वो मेरा सब कुछ अपना है, बाहर तो कहीं से कुछ आता ही नहीं उसमें, तो कहाँ से आएगा? हर जो भी चीज आप देख रहे हो सब कुछ मेरी है. ठीक है? So this causes a problem because IBM PC can communicate with IBM PC only and DEC PC can communicate with DEC PC only. To solve this problem,
ISO, कौन है ISO? OSI. ISO means International Standardization, International Organization of Standardization. It's a regulatory body. Like हमारे पास भी हम हेलमेट लेते हैं ना, तो ये ISI मार्क का होना चाहिए. It's a regulatory body. वो क्या करता है, एक डिफाइन करता है कि इतना स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए. At least you should follow these rules. Okay, you should follow these rules. So OSI models tells you should follow these protocols to make it compatible. Okay. So ISO has introduced a model in 1970. They proposed this model, but in 1984 it was implemented. Okay, so OSI stands for Open System Interconnection. Is a reference model that describes how information from a software application from one computer is moving through physical media to software application of another computer. So generally we talk about, हम कहाँ बात करते हैं, हम एक यूजर एप्लीकेशन खोलते हैं. जनरली वी ओपन अ ब्राउजर इफ यू वांट टू डाउनलोड अ फाइल और वेब सर्फिंग, इफ यू आर डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम यूट्यूब, सो इट विल जनरेट अ रिक्वेस्ट टू यूट्यूब सर्वर. ओके, तो हम काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे. हमने जनरेट करी एक रिक्वेस्ट, यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे एक गाना डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया. तो व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स बिहाइंड वर्किंग इन इट? क्या पीछे क्या काम हो रहा है, कैसे रिक्वेस्ट गई, कैसे वहां से आ रहा है यूट्यूब से डेटा. ठीक है, हो सकता है साइमल्टेनियसली यूट्यूब के अलावा हम एक गाना.com खोल लिया, गाना.com से भी गाना डाउनलोड हो रहा है, यूट्यूब से भी. तो आज तो मेरे एक ही लिंक पे दोनों गाने रहे ना, वो आपस में मर्ज नहीं हो सकते हैं ना भाई. गाना.com के सर्वर से भी आ रहा है और लिंक तो मेरा एक ही है. उसी लिंक से गाना.com की फाइल आ रही है, उसी लिंक से यूट्यूब का वीडियो आ रहा है और गाना.com के MP3 फाइल आ रही है. अब वो MP3 में कन्वर्ट होना, यूट्यूब की वीडियो फाइल को MP4 या डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट होना, एंड द सेग्रीगेशन ऑफ डेटा बिकॉज they are incoming from the same link, so they can merge. Okay, so who is responsible for segregating the data? How this communication will happen, we will see in the OSI model. So basically it's a reference model which tells us how two devices are communicating each other, what are the protocols is responsible to establish a communication behind the scene. Okay, or it's a principle that different vendors should follow to make their devices compatible. Okay, so they have divided the whole process into 7 layers. उन्होंने क्या करा, पूरी प्रोसेस को थ्योरेटिकली है समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, they have divided into 7 processes or they have named them a layer. उन्होंने उनको 7 लेयर्स में तोड़ दिया पूरी प्रोसेस को. ठीक है, and each layer has a specific role. In each layer is a set of protocol suite, means हर लेयर के अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं और हर प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक काम होता है. ओके, तो OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स. शॉर्ट में आप इतना लिख सकते हो, यहां पर ये भी लिख लेना. OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम कनेक्शन, इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल, it was introduced by ISO, International Organization of Standardization, in 1984. मैंने लिखवा दिया, अच्छा नीचे लिखा हुआ है. So it consists of 7 layers and each layer performs a particular network function. OSI model was developed by the International Organization of Standardization in 1984. In short, you can write OSI is implemented by ISO in 1984, and it is a reference model which tells you how two devices are communicating with each other. Its goal, the main thing is, its goal is the interoperability of diverse communication system with standard communication protocol. अब इस लाइन से मतलब समझने क्या है, they are using their proprietary software, so they are not interoperable. So the goal of OSI model is the interoperability of diverse communication, because वो अलग यूज कर रहा है, ये अलग यूज कर रहा है, और diverse communication के बीच में interoperability कौन बैठा रहा है? OSI, by using a standard communication protocol. वो कह रहा है कि मैं एप्पल का ये वाला सॉफ्टवेयर, उसको एक नाम दे रखा है, ये एप्पल प्रोटोकॉल है, ये कह रहा है मेरे IBM प्रोटोकॉल है. नो, आप एक OSI प्रोटोकॉल यूज करो, तुम भी और तुम भी, दोनों की सेम हो जाएंगे इन लेमन लैंग्वेज. तो उन्होंने क्या करा, हर प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड, जैसे होता है ना, मैं FTP यूज करूंगा, सिस्को में PVST करूंगा, Huawei में कोई और प्रोटोकॉल यूज करूंगा, वर्किंग का सेम. तो क्या है, कंपैटिबिलिटी नहीं है. अब आपने एक स्विच लगा रखा है सिस्को का, एक Huawei का, तो काम नहीं कर रहा.
सिस्को पे सिस्को काम हो रहा है बट आपस में नहीं हो रहा कम्युनिकेशन, तो आप क्या करते हैं, IEEE क्या करती है हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल निकालती है, FTP, सब पे चलेगा, यूआईपी पे चलाओ, सिस्को पे भी चलाओ, किसी और पे भी चलाओ। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स मीन यू शुड फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, different vendor devices, so they can communicate with each other. This is the goal of OSI model. So we will see क्या हमारे पास layer थी. So they have divided into 7 layers: application, presentation, session, transport, network, data link and physical. They have given their name to each layer by their working. क्योंकि शुरुआत में जब हम कोई चीज खोलते हैं ऊपर तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो एप्लीकेशन. Okay, why it is called presentation, I will tell you. First, what is application layer? Application layer basically provides you an interface, provides the user to a interface, ठीक है, for accessing network services using various protocol. For example, you have opened the web browser Google Chrome and you are doing web surfing. So when you are doing web surfing, so HTTP and HTTPS, these two protocols are responsible behind it. So basically an application layer provides the user a interface. अब आप ये नेटवर्क सर्विसेज तो हैं, वेब सर्फिंग क्या है, नेटवर्क सर्विसेज है. जब भी आप नेटवर्क से कनेक्टेड होते हो तो आप क्या खोलते हो हमेशा, ब्राउजर. इट्स अ नेटवर्क एप्लीकेशन. क्या आप MS वर्ड से करते हो कम्युनिकेट, MS एक्सेल से करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर से करते हो नहीं, हमेशा आप गूगल पे खोलते हो. आपको टेलनेट करना है तो गूगल खोलोगे, वेब सर्फिंग करनी है, डाउनलोडिंग करनी है यूट्यूब पे, कुछ भी, you use a network. If you want to use a network services, you open a browser, network application, it's an application na. So what it provides you, it provides you a interface to use the network services, just like web surfing, file transfer. If you are downloading a file or uploading a file using file transfer, so the FTP is responsible behind it. If you are sending an email, so SMTP, simple mail transfer protocol, this protocol is behind the scene. ठीक है, फॉर वर्चुअल टर्मिनल, SSH एंड टेलनेट. ओके, तो ये एप्लीकेशन लेयर, वर्चुअल टर्मिनल रिमोटली, इफ वी आर रिमोटली एक्सेसिंग एनी नेटवर्क, तो हम थ्रू टेलनेट और थ्रू SSH वी कैन एक्सेस. ये तो हम हमारे सामने है. अब ये राउटर अगर अमेरिका में भी पड़ा है ना, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, थ्रू वर्चुअल टर्मिनल्स. ओके, तो उसके पीछे प्रोटोकॉल होते हैं SSH और टेलनेट. So application layer is basically a protocol suite in which multiple protocol, FTP, TFTP, SNMP, BootP, DHCP, DNS, HTTP, Telnet, SMTP, POP3, IMAP, various protocols are responsible. Okay, this is your application layer. Written? आप इतना लिख सकते हैं, in application layer provides a interface to a user to use various network services. For example, web surfing, file transfer, email, और उसके प्रोटोकॉल सीखते हैं आप. हाँ हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं DHCP कौन सी लेयर पे है, तो स्पेसिफिक जो मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारी हैं, तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना. हाँ, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर. Presentation layer is responsible for how the data will be transmitted to a session layer. Why? Because it is in chronological order like this. This is application layer. उसके बाद क्या आता है, presentation layer, then आता है session, then transport, then network, then data link, then physical. तो application layer से presentation layer data accept करेगा और फिर उसको आगे forward करेगा session पे. तो presentation layer is responsible for how the data will be transmitted to session layer while sending. जब ये send कर रहा है और जब ये receive कर रहा होगा तो क्या करेगा, presentation पे आएगा, आगे forward करेगा ना. While sending or to presentation layer while receiving, basically it act as a data translator for a network. तो इन दो protocols, दो layers के बीच में एक data translator काम करता है. Suppose जो data है ना हमारा वो MP3 फाइल में था, जब वो जाएगा वायरलेस मीडियम के थ्रू तो क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब बाइनरी में कन्वर्ट होके आया, जब मैंने रिसीव करा वो बाइनरी में है, तो आई हैव टू मेक इट प्रेजेंटेबल टू द यूजर. मुझे इसको प्रेजेंटेबल बनाना है, MP3 फॉर्मेट में दोबारा चेंज करना है, ताकि जब यूजर देखे उस डेटा को तो वो गाने की फॉर्म में आ जाए, ना कि 010 की भाषा में आ जाए, तो सो दैट यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड ना. तो ये बीच में जो ट्रांसलेशन हो रहा है, जो डेटा MP3 या टेक्स्ट फाइल, उसको वो क्या करता है, जैसे एप्स्टिक फाइल में है तो वो ASCII में चेंज करेगा उसको, कैरेक्टर ASCII में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज.
अब वो डेटा उसमें जा रहा है, फिर 01 की भाषा में या एनालॉग रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, वापस जब जाएगा तो उनको क्या करेगा, दोबारा उसको कन्वर्ट करेगा टू मेक इट प्रेजेंटेबल टू द यूजर. Okay, so this happens in the presentation layer. So basically it acts as a data translator for a network. Three main function of this presentation layer is encoding and decoding, encryption, decryption, and compression and decryption. Let us understand. ये क्या होता है, यहाँ समझते हैं. तो उसके तीन मेन फंक्शन होते हैं. Encoding and decoding is nothing as data translation, to change a data from one format to another. Okay, sender dependent format to machine dependent format to recipient dependent format, जो बीच में data interchange करता है ना, make it presentable to the users. Okay, तो ये क्या होता है आपका this process is known as encoding and decoding. अब यहाँ से data आया, उसको encode कर रहा है दूसरी format में, फिर वहां पर जब करेगा तो क्या करेगा, वापस डिकोड करेगा उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में जो रेसिपिएंट डिवाइस है उसको सपोर्ट करती है. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. ये पेन थोड़ा ऐसे चलता है इसलिए मैं वो ही ले था. ये बहुत डिक्रिप्शन, CRYY और लगेगा. ओके, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. This means if you are using any sensitive data from a sender to destination, so it, suppose PC or this is a server, so your Google server, and you are logging into your Gmail account. So you have sent a user email ID. So first it will check whether you are the authenticate user or not. So for that you need a password. He needs a password. So you will send a password to him. Until and unless you provide a password, it will not authenticate you to use the Gmail services. Okay, so Gmail में बहुत सारी सर्विसेज है, Google Drive, Gmail बहुत सारी हैं, तो आप यूज तभी कर सकते हो जब तक आप प्रोवाइड, जैसे आपने पासवर्ड प्रोवाइड कराया तो दे it allow you or authenticate you to use that services. But this password will move in the clear text. Okay, so anyone can hack it between it, or he can use it. Okay, so that encryption and decryption is there. What it does in encryption, suppose you have sent the password Cisco. Okay, so it will change into different format in a cipher text. तो इस पासवर्ड को वो दूसरी भाषा में चेंज कर देगा. वो भाषा ऐसी होगी that is ineligible, उसको आप पढ़ ही नहीं सकते. Suppose it will change into hash star hash %1 2D star in this type, in cipher text, so that you cannot understand. If this password is hacked between these two devices, what will happen? It cannot read it, even though it has hacked your password, but वो उसको read नहीं कर पाएगा. So this process is called as encryption. और अगर आप encrypt करते हो ना, तो अब ये कैसे पता करेगा? इसके पास भी तो यही आएगा ना डेटा. तो ये क्या करते हैं, दोनों ही एक ही एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं encrypt और decrypt करने की. ओके, सो वो उसी एल्गोरिथम से उसको वापस क्या करता है, डिक्रिप्ट कर लेता है. सपोज यहाँ पर उसने लगाया कि अगर मैं आपको भेज रहा हूँ राम, तो मैं आपको राम नहीं भेजूंगा. R का मतलब होगा 1, A का मतलब होगा 2 और M का मतलब होगा 3. तो मैं आपको 1 2 3 भेजूंगा. तो ये 1 2 3 भेजेगा, बीच में हैक कर लिया, ये 1 2 3 भेज रहा है. 1 2 3 से तो लॉग इन होना ही, क्योंकि एक्चुअल पासवर्ड क्या है, राम. अब इसको पता है कि ये एल्गोरिथम क्या यूज करता है, R का मतलब 1, इसको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि मैंने बताया ना वो सारे मॉडल में सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. तो जिससे इनक्रिप्ट कर रहा है उसी एल्गोरिथम से उसको डिक्रिप्ट करेगा. इसको पता है 1 का मतलब R, 2 का मतलब A and 3 का मतलब M, so it will decrypt it like that. So this whole process known as encryption and decryption, this happens in the presentation layer. And compression and decompression. Suppose you have a data of 100 Mbps, and you have a 20 Mbps link. 20 Mbps link. So if you send 100 Mbps data through a 20 Mbps link, so how much time you will take? You will take 5 seconds. 100 Mbps data को अगर 20 Mbps के speed से भेजेंगे तो 25 to 100, you will take 5 seconds. Okay. So what it does the encryption compression technique.
compression is used to reduce the size of data. Okay, so by using a compression technique, using a various algorithms, ठीक है, it reduced the size of data. Let's suppose hypothetically it has reduced to 60 MB, 100 MB को reduce करके 60 MB कर दिया. तो now see how much time it will take now, 3 seconds. So it does the compression and decompression technique so that your data will travel fastly. ठीक है, ताकि आपका डेटा और तेजी से ट्रैवल कर पाए. जनरली यू सी इन द ईमेल, इफ वी आर कंपोजिंग अ मेल ऑफ मोर देन 25 MB, so it will show you an error that you cannot send over and above of 25 MB. so what you will do, आप एक क्या करते हैं, विनजिप या विनरार कोई सॉफ्टवेयर यूज करके उसको कंप्रेस करते हो, तब आप भेजते हो, है ना. so this happens in the presentation layer. डीकम्प्रेशन वही उसको ना, उसको फिर से अब आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो ना. जब आप डाउनलोड करते हो तो विनजिप में आती है, खुलती है फाइल, आप उसको क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट. तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द फाइल इज नोन एज डीकम्प्रेशन. ओके, तो बेसिकली योर प्रेजेंटेशन लेयर एक्ट एज अ ट्रांसलेटर. Its main function is to translate from one format to another, and three main functions are encoding, decoding, encryption, decryption, and compression and decompression. Then session layer. Session layer is responsible for dialog control. Establish, maintain, and terminate the session of the interaction between communicating devices. Okay. यहाँ देखो. This is your PC, and you have opened the Google Chrome browser. In URL bar, you have multiple tabs open. You have opened the multiple tabs in which you have opened YouTube, and you are downloading a file. Okay. Simultaneously, you have opened the Gaana.com, and you are also downloading a MP3 file. Simultaneously, you have opened the Google browser, and you are searching. Suppose you are searching for Mahatma Gandhi. Okay, it means that you are doing web surfing. Okay, so this request is generated by your PC, or this is your YouTube server. It is represented by Y. It is your Gaana.com server. Server क्या होता है? Basically a location where this data is stored. एक location होती है, okay ना? And this is your, तो ये web server होगा, कहीं पर ये महात्मा गांधी की information रखी होगी. अब ये आपकी रिक्वेस्ट इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, and they are, as I have told you, working as a sender. Your PC is served as a recipient, so they all are simultaneously sending your data. तो ये जो चैनल तो आपका एक ही है ना, 3 लिंक थोड़ी गए होंगे अलग अलग, चैनल तो एक ही है. तो YouTube का डेटा आ रहा है, और वेब सर्फिंग का डेटा आ रहा है, और इसका आ रहा है, तीनों अलग अलग फॉर्मेट्स में आ रहे हैं. तो वो तो आपस में मर्ज हो जाएंगे ना, मर्ज हो सकते हैं in this way. So who is responsible for segregating your data? So session layer, what session layer does, it basically divides a session. It creates a logical session, or basically it's segregate the data. It creates a logical boundary between a data. Logical boundary है ये. तो एक session बनाती है, उसके लिए reserve कर देती है कि ये आपका YouTube का session है. So when you open a tab in which you open a YouTube, it creates a session. When you open a Gaana.com, it creates another session. When you're doing a web surfing, it creates another session. Or when you receive, while receiving, it creates a logical boundary between your data, so that your data cannot merge to each other, so that you can receive the correct data. आपके पास डेटा एकदम करेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा कि Gaana.com की फाइल इसमें मर्ज हो गई, इसके इसमें हो गई. तो ये काम होता है आपका बेसिकली सेशन लेयर का. ठीक है, तो सेशन लेयर का क्या करते हैं, इट्स क्रिएट द सेशन. और आपने यहाँ से YouTube बंद कर दिया, तो YouTube बंद करने पे क्या करता है, उस सेशन जो बिल्ड हो रखा है ना, उसको वो क्या करता है, बैकएंड में उसको टर्मिनेट करता है. फॉर एग्जांपल आप लेते हैं क्या, बैंक की वेबसाइट खोलते हैं, बैंक की वेबसाइट खोलते हैं ना, उसका एक सेशन टाइम रखता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस. ओके, बैंक की साइट आप पूरे दिन खोल के रखेंगे 24 घंटे, तो मे बी आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, कोई अपनी साइट 24 घंटे क्यों खोल के रखेगा, साइट से कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके करोड़ों रुपया होते हैं, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, आपका पैसा नेट बैंकिंग से कहीं जा सकता है ना. तो इतनी देर आप खोलोगे तो क्या करता है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस. फॉर एग्जांपल आपने SBI लॉगिन किया, तो इट क्रिएट अ सेशन, और वो सेशन का एक टाइम देता है, सेशन टाइम आउट हो जाता है ना हमारा. क्यों देता है टाइम, बिकॉज उसे पता है कि कोई
दूसरा यूजर होगा, अनऑथेंटिकेट यूजर होगा, तो वो हैक कर सकता है। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस वो क्या करता है, उसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टाइम होता है, सेशन टाइम आउट। अगर आपने इतनी देर तक नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉग आउट कर देता है। और आप 2 या 3 बार, और इन सेशन लेयर 2 more things will happen, authentication and authorization will happen in this session layer. If you try to connect your SBI login and you have entered a wrong password for 3 times, तो वो क्या करता है, 24 आवर्स के लिए क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा कि कोई हैकर बैठा होगा, वो तो कोई एल्गोरिथम रन कर करके बार बार हजारों करोड़ों पासवर्ड लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं तो खुल ही जाएगी ना। फॉर दिस सिक्योरिटी पर्पस उन्होंने क्या कर रखा है, 3 टाइम से ज्यादा आप यूज कर ही नहीं सकते। तो दिस हैपेंस इन द सेशन लेयर। ये जो हमारा राउटर है, इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर सेशन लेयर एक्चुअल में कैसे काम करती है, ये तो थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो मोड होता है आपका, क्या बोलते हैं, यूजर एग्जीक्यूटेबल मोड होता है, और आपका प्रिविलेज मोड होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी आइडल टाइम होता है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन को खोल के पता नहीं 30 सेकंड इतने सेकंड तक बैठोगे ना, वो आपको लॉग आउट कर देगा उससे बाहर, टेलनेट से बाहर हो जाओगे आप, सीधे बाहर हो जाओगे। दैट्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये इसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम है, मतलब सेशन टाइम आउट होता है। जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो टेलनेट का हम सेशन टाइम आउट दे सकते हैं, सेशन रीट्राइज दे सकते हैं कि पासवर्ड आप कितनी बार प्रोवाइड कराओगे। आप टेलनेट कर रहे हो, व्हाट यू नीड अ पासवर्ड, आईपी एड्रेस एज वेल एज द पासवर्ड। तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल प्रोवाइड द पासवर्ड। अब आप इसी कंपनी में हो, तो आप अगर भूलोगे तो कितनी बार भूल जाओगे, 2 या 3 बार में तो याद आ जाएगा ना। और जो 1000 बार ट्राई कर रहा है, इट मींस इट इज अ हैकर, वो हैकर हो सकता है। अगर वो 1000 बार ट्राई आप उसको अलाउ कराओगे, तो अगर आपने उसको मल्टीपल टाइम्स अलाउड कराएगा, कोई भी हैकर बार बार रन करके उसको हैक कर लेगा और वो आपका पूरा नेटवर्क बैठा सकता है। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस इट क्रिएट्स अ सेशन, और सेशन का टाइम हम डिसाइड करते हैं सिक्योरिटी के पर्पस से। और पासवर्ड के लिए भी हम कितनी बार पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हम डिसाइड करते हैं। वी कैन कॉन्फ़िगर इट। ओके, हाँ, इट्स अ रेफरेंस मॉडल, बट यहाँ पर भी सेशन टाइम आउट होता है, बता रहा हूँ ना। यहाँ पर ऐसे होता है, बाय डिफॉल्ट सिस्को के सर्वर, सिस्को के आपने रिमोट लॉगिन ले रखा है और आप आइडल बैठे हो खोल के, ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं इतने सेकंड्स के बाद एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देखना प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाओगे। सो function of session layer, authentication, to authenticate the user to establish the connection. This happens in authentication. Now one is authorization. What do you understand by authorization and authentication? Suppose you are working in a company, for entering in a company, what the things you required, क्या चीज required है आपको किसी कंपनी में घुसने के लिए। मैं जा सकता हूँ कि कंपनी में, can I go? Your ID। तो ऐसे ही हमें किसी सर्विस को यूज करना है, तो हमें एक यूनिक चीज मिली होती है, दैट इज आवर पासवर्ड। फॉर टेलनेटिंग अ राउटर यू विल गिवन अ आईडी, आपको एक आईडी भी मिलती है और एक पासवर्ड भी मिलता है, ठीक है ना। आईडी भी मिलती है, सारे यूजर्स को डिफरेंट आईडी मिलेगी। टू एक्सेस द सेम राउटर यू विल गेट एन आईडी, ओके। और when you provide the password, then you will be able to access the router. Okay, this is known as authentication. And what do you mean by authorization? Suppose in this router you have entered the password, you all can access the router. This is called authentication. What do you mean by authorization? Is ID का क्या password है? You will be given an access control. What do you mean by access control? In the router we have 3 modes. User executable mode. In this mode you can run limited commands like show version, show clock, okay, basic commands, okay, nothing else. In privilege mode you can see all the commands, but you can see only, you cannot configure it. आप सिर्फ देख सकते हो। It is used for troubleshooting only. तो जनरली लेवल 1 और लेवल 2 हम क्या करते हैं, बस वही शो कमांड का एक्सेस मिला होता है। और सपोज यू आर अ फ्रेशर, so you will be given only user executable mode permissions. If you provide the password, you can access the router, but up to user executable mode. And you are a senior network administrator, so you can configure it. You can see only, and he can configure it also. Okay, because he has the authority. So this is known as authorization. Means you are allowed to
use the specific services on the router. Okay, suppose in a server multiple servers are running, web servers, email server, so you are allowed to use only web surfing, web server. You are not allowed to use the telnet services और ईमेल सर्विसेज. मतलब एक ही सर्वर पे आप पहुंच तो जाओगे उस नेटवर्क से, ऑथेंटिकेट तो हो जाओगे, बट आप मल्टीपल सर्विस रन नहीं कर सकते. सिर्फ आप टेलनेट के लिए ही अलाउड हो, आप सिर्फ ईमेल कर सकते हो. तभी हम देखते हैं बैंक की वेबसाइट में क्या होता है, उनको पहले से ही एक ही एक्सेस मिला है, बैंक की वेबसाइट खुलेगी बस, और कुछ नहीं खुलेगा. अगर हमने उनको खोलने दिया तो वो अपने काम के अलावा कुछ और खोल के बैठ जाएंगे. तो वी डोंट नीड इट. तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं. तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज authorization. सर अगर किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करने के लिए होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. वो भी राउटर पे होता है. एक्सेस लिस्ट के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं. तो हर लेवल पे ब्लॉकेज होती है. तो यहाँ इस राउटर पे हम लेयर 3 तक ब्लॉक कर देते हैं, बट फायरवॉल क्या है, वो लेयर 7 तक ब्लॉक. एप्लीकेशन बेस पे ब्लॉक कर सकते हो, कंटेंट बेस पे ब्लॉक कर सकते हो. अगर कोई फाइल आ रही है तो उसमें ये सारे कंटेंट लिखे हुए हैं ना, उस बेस पे वो उसको ब्लॉक कर देगा और आपको वेब ब्राउजर पे एरर आ जाती है कि दिस फाइल हैज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. अगर आप कह रहे हो कि अलाउ तो अलाउ, अदरवाइज वो, बट वो बेसिक लिमिटेशन होती है जो हमारे विंडोज में आती है फीचर, तो फायरवॉल हम कहते हैं. बट जो एक्चुअल फायरवॉल होती है उसमें बहुत डीप इंस्पेक्शन होता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है. ओके, transport layer, you can say it is the heart of this layer. Okay, the transport layer controls the reliability of communication using various techniques. In transport layer, actual delivery of data, you can say actual node to node delivery of data is happens here. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाना, मतलब कौन सी सर्विस को यूज करना है, this will happen in the transport layer. So it uses various techniques: segmentation, reassembly, sequencing. Its main functions are segmentation and reassembly, sequencing, flow control using windowing, error control using FCS, frame check, sequence. And basically it uses two main protocol to deliver the data. Means transportation protocol. Transport का मतलब क्या होता है, एक सामान को उठा के दूसरी जगह ले जाओ. तो आपका जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे लेके जाते हैं ना, और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आपने लॉजिकल एड्रेसिंग कर दिया, आईपी एड्रेस कर दिया, सोर्स से डेस्टिनेशन आपने लगा दिया लेबल, अब जाएगा कौन लेके, ट्रांसपोर्ट लेयर. तो एक्चुअल transportation is done in this layer. Basically mainly it uses two main protocols, that is TCP and UDP. So transmission control protocol, it is connection oriented, and UDP, user datagram protocol, it is connectionless. Okay, so it is a very broad topic, so we will discuss it specifically on this topic later. Okay, so TCP UDP अपने आप में अलग से दो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम. देखो, कनेक्शन लेस का मतलब होता है कि ये कोई चीज भेजता है ना, तो उसका एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आता अगला पैकेट नहीं भेजेगा. और यूडीपी में ऐसा नहीं होता, इट सेंड्स ओनली वेदर यू रिसीव और नॉट. मतलब यहाँ एक्नॉलेजमेंट मिलती वही ना, क्योंकि टीसीपी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 3-way हैंडशेक. 3-way हैंडशेक में क्या होता है, कोई पैकेट भेजा तो आप क्या कहोगे, यार मुझे मिल गया, अब मैं अगला भेजूंगा. फिर तुम कहोगे मुझे मिल गया, अब मैं अगला भेजूंगा. तो रिलायबिलिटी है ना. बट यूडीपी में क्या, ऐसा नहीं है. यूडीपी में क्या है, माल भेज दिया, वो कह रहे हैं यार ब्रिटी पे वहां पर ट्रांसपोर्ट पे, यार वो तो पहुंचा नहीं. अरे हमें क्या मतलब सर, हमने तो भेज दिया. हमें मतलब नहीं, हमने भेज दिया, अब कहाँ बीच में खो गया वो हमें मतलब नहीं. अब ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करोगे या ऐसी वाली जो आपको, बट हाँ मैं बता रहा हूँ यूडीपी होती है. अब ऐसे में क्या होता है, जब आप बार बार वेट कर रहे हो, इधर से मैंने माल भेजा, अगला मत भेजो भाई जब तक उसका फोन ना आ जाए. अब आपका फोन उन्होंने करा नहीं या लेट कर दिया, आपका माल रुका पड़ा. तो टाइम कंज्यूमिंग है. यू कैन से टीसीपी इज मोर बेटर देन यूडीपी, बट ये टाइम कंज्यूमिंग. इसमें आप जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तब तक दूसरा भेजोगे नहीं पैकेट. जब तक until and unless you receive the acknowledgement, you will not send the data. वो जो पड़ा हुआ है मेरे पास वो जाएगा ही नहीं. यूडीपी में तो भेज दिया हमने सारा, तो टाइम तो हम देखेंगे. तो it's a very broad topic, so we will discuss specifically in next session. Okay. Transport layer, it uses the segmentation and reassembly. So what is segmentation? Basically what happens, let's suppose we have a file of 10 MB 10 Mbps की फाइल है हमारे पास. ओके,
और ये PC-A और ये सर्वर है या PC-B मान लो इसको, और ये 2 Mbps का लिंक है, तो ये 10 Mbps का फाइल इसको भेजेगा। ये तो 2 Mbps की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 Mbps की। तो व्हाट इट डज द सेगमेंटेशन। इन सेगमेंटेशन इट ब्रेक्स द लार्ज पैकेट इनटू मल्टीपल चंक्स, मल्टीपल सेगमेंट। क्या करता है ये 10 Mbps के क्या करेगा, 2 MB के क्या कर देगा, ये 5 पैकेट्स बना देगा। 2 MB के क्या ये तो हुआ ना, सीक्वेंस तो हुआ, ये जो सेशन लेवल सीक्वेंस हुआ उसका बस ये तो ये डिवाइड कर रहा है ना, सीक्वेंस तो वही हो गया। सीक्वेंस वही हो गया मतलब सेशन लेयर में सीक्वेंस क्रिएट होता है। सीक्वेंस कहाँ बताया मैंने सेशन लेयर में? ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने बताया सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग। तो फर्स्ट इट डज सेगमेंटेशन। व्हाट डज सेगमेंटेशन रिफर्स? इट डिवाइड द लार्ज पैकेट इनटू मल्टीपल स्मॉल पैकेट। अब 10 Mbps के 2 MB के 5 पैकेट बना दिए, तो ये 2 MB के पैकेट अब आराम से चले जाएंगे, 5 सेकंड लेगा, चले जाएंगे। अब एक बार में तो सारा डेटा नहीं जा सकता 10 Mbps का 2 Mbps के लिंक से। ओके, तो उसने क्या करा, तो बेसिकली इन सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक मल्टीपल, इट डिवाइड द लार्ज डेटा इनटू मल्टीपल चंक्स। ओके, एंड वी कॉल्ड इट एज अ सेगमेंट। इन टेक्निकल टर्म वी कॉल्ड इट एज अ सेगमेंट। बेसिकली वो डेटा होता है। In the upper 3 layer application, presentation and session, we referred it as a data. When the transport layer receives the data, it converts into multiple segment, multiple chunks, and that chunks is known as segment. Okay, अब segmentation के थ्रू जा सकते हो। तो segmentation के 2 कारण थे। फर्स्ट तो ये कि 10 Mbps के लिंक पे 2 Mbps से ज्यादा नहीं आएगा। सेकंड इज, you will see in this picture what is the difference between without segmentation and after segmentation. Suppose ये 100 Mbps का लिंक था और 100 Mbps की फाइल थी, तो एक ही बार में भेज सकते हैं ना। तो इसने क्या करा, 100 Mbps की फाइल एक ही बार में भेज दी। अब फाइल डाउनलोड हो रही है, it will take some time, फाइल डाउनलोड हो रही है, बीच में क्या हुआ, लिंक आपका ब्रेक हो गया। तो what will happen, जितना डेटा यहाँ डाउनलोड हो चुका है ना वो वापस चला जाएगा। तो आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा। You don't have a resume facility here. You have to download the whole data again. If you are downloading, suppose you are downloading again and 90% process is done, then the link failure happens. Again, you have to download the same data from the beginning. This is the drawback of without segmentation. After segmentation, what it does, 100 Mbps का पैकेट उसने 10 Mbps के 10 पैकेट बना दिए, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से जा रहे हैं, ठीक है। एंड तो क्या हुआ, 1 2 3 हो गए डाउनलोड, और आफ्टर दैट लिंक इज फेलियर। तो व्हाट इट विल डू, इट हैज द रिज्यूमिंग कैपेबिलिटी, बिकॉज 3 पैकेट तो पहुंच चुके हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट जा चुका है, आई हैव रिसीव्ड द 3, तो नेक्स्ट अब कहां से डाउनलोड होगा, 4 से। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन एंड विदाउट सेगमेंटेशन। तो 2 चीजें थी, एक तो वो लार्ज को तोड़ता है, सो ये हो गया सेगमेंटेशन। एंड इफ यू divide a large data into segment, तो one problem can occur. क्या हो सकती है, suppose you have divided the whole packet into multiple segment and you are sending, okay, suppose आपके पास एक text file थी, उसमें आपने लिखा राम is a good boy। एक पैकेट में एक डेटा जा रहा है आपका, कुछ ऐसे, राम is a good boy। ओके, यू हैव क्रिएटेड द सेगमेंट 1 2 3 4 5, 10 Mbps की फाइल थी, 2 MB की आपने बनाया, और उसमें कुछ डेटा जा रहा है, ऐसे तोड़ के जा रहा होगा ना, आपका पूरा डेटा था राम इज अ गुड बॉय, और एक पैकेट में जा रहा है राम इज अ गुड बॉय। ड्यू टू कंजेशन इट मे हैपन दैट योर पैकेट इज अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। ड्यू टू कंजेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका पैकेट जो है मे अराइव एट आउट ऑफ ऑर्डर। सपोज द पैकेट इज अराइव इन दैट ऑर्डर, दैट 5 4 3 2 1 आया ही नहीं, चलो आ भी गया, तो 5 4 3 2 1, तो व्हाट विल हैपन, इट विल ओपन द पैकेट, तो बॉय गुड ए इज राम। ये तो जो आपका डेटा आएगा वो इनकरेक्ट फॉर्मेट में आएगा, आप उसको मतलब पढ़ ही नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई सीक्वेंसिंग इज डन। So when it divides the large data into multiple segments, so it does the sequencing also. It add the sequence number, वो भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। अगर आप बिल्कुल टेक्निकल में देखो 0x 1 2x 3 4x 3, हर सेगमेंट पे एक सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है। और एक पैकेट ऐसा होगा जिसमें पूरा 1 से लेकर 5 तक पैकेट आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या करेगा, 1 से लेकर 5 पैकेट आ रहे हैं, एक ये इंफॉर्मेशन होगी हेडर पे, और बाकी होंगे 1 2 3 4 5।
तो इसको जब रिसीवर एंड पे पता लगता है कि 5 पैकेट आने हैं और जिसमें से मेरे पास 5 4 3 आ गया है, 2 और 1 नहीं आया, क्योंकि सीक्वेंसिंग है, दैट्स व्हाई इट कैन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक पैकेट टू द सेंडर बाय यूजिंग द सीक्वेंस नंबर। अब सपोज इसने भेजे 5 पैकेट भेजने थे, इसने 1 2 3 भेज दिए, तो इसने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट में ये 4 भेजेगा। इसको ऐसे समझो, ये सेंडर है, इसने 5 पैकेट बनाए, ठीक है, 6 पैकेट थे, 6 पैकेट जा रहे थे, इसके पास पहुंच गए 1 2 3 4 5 6 लाइन में लगे हुए हैं, इसके पास पैकेट पहुंचा 1 2, ठीक है, 3, आगे नहीं पहुंचा, 3 इसके पास पहुंच गया। तो एक्नॉलेजमेंट जब ये देता है तो क्या देता है, इट एड्स द 1, इट इंक्रीमेंट कर देता है, जो आपने रिसीव करे उसमें एक और जोड़ देगा, तो सीक्वेंस नंबर +1 मींस 4। तो इसको क्या पता लगेगा, 3 जा चुके हैं, चौथे के लिए मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंड फ्रॉम 4, इट मींस सेंड फ्रॉम 4, तो ये क्या करेगा, 4 से भेजेगा। अब 4 5 6 पहुंच गए तो क्या भेजेगा ये एक्नॉलेजमेंट, 7 इन 6 रिसीव कर चुका हूं मैं, तो सीक्वेंस नंबर में एक ऐड कर देता है। ओके, एक तो सीक्वेंस नंबर इसके लिए यूज होते हैं। सेकंड, if the packet is arrived out of order means 5 4 3 2 1, so by using the sequence number it rearrange the data, कि पहला सीक्वेंस नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 में, even though it has arrived in the order of 5 4 3 2 1, it rearrange the data by using the sequence number, that's why it is called segmentation and reassembly। तो it does, तो यहां पर मैंने लिखवाया था कि यहां पर क्या होता है, सेगमेंटेशन क्यों होता है, विदाउट सेगमेंटेशन बताया, फिर सीक्वेंसिंग होती है, सीक्वेंसिंग बता दी, और रीअसेंबली, क्योंकि इफ योर पैकेट इज अराइव आउट ऑफ ऑर्डर तो यूजिंग द सीक्वेंस नंबर इट अरेंज द डेटा इन अ सीक्वेंस फॉर्मेट। तो सर पहला ही पैकेट अगर 4 पे चला गया, हाँ, तो वो रिक्वेस्ट +1 की भेजेगा, फिर वो 5 भेजेगा, तो 1 2 3 तो गया क्या, जैसे पहला ही पैकेट 4 का आ गया, हाँ, वो भेजेगा +1 करके, तो 5 का रिक्वेस्ट गया उसके पास, उसने 5 भेजा, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया पहले 4 का क्या मतलब हमने का आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है, 1 2 3 नहीं गया, 4 चला गया, 1 2 3 कंजेशन में 4 चला गया, उसको 4 देखो, एक मैंने बताया, एक हेडर भेजता है 1 2 5, वो होता है हेडर भेजता है, उसे पता है 1 से पैकेट आएगा, अगर उसके बाद 1 नहीं पहुंचा ना तो वो पहले 1 की रिक्वेस्ट कर रहा होगा, 4 आ भी जाए तो वो रिक्वेस्ट करेगा 1 की, 1 2, उसे पता है हेडर में तो 1 से 5 तक आने, तो 1 2 जब उसके पास आ जाएंगे तो वो भेजेगा, 2 आ गए अब तो भेजेगा 3 की, तो वो 3 से भेजेगा, ठीक है। इस तरीके से एक हेडर भी होता है, पहले हेडर में ये इंफॉर्मेशन भी होती है कितने पैकेट आने हैं, और फिर हर पैकेट के अंदर, मतलब एक हेडर होता है, हेडर में होता है कि 1 to 5, जैसे हम लेटर भेजते हैं ना, तो एक पेज पे लिखा होता है 1 to 5 और फिर पेज नंबर होता है 1, उससे हमें पता लगता है कि टोटल 5 पेज है, और होता है ना 1 डिवाइड बाई 5, यानी टोटल 5 है, और ये कौन सा पेज है 1। अगर वो टोटल 5 हम ना लिखे तो कैसे पता लगेगा कितने पैकेट आने हैं। अभी आप कह रहे हो चौथा भेज दिया, तीसरा, उसे क्या मतलब है, हो सकता है उसे चौथा ही भेजना, सेंटर को पता लगेगा उसने 4 एक ही पैकेट भेजना था, तो ये होता है उसमें। सर अगर गलत सीक्वेंस से आर डी डी इसमें भी होगा, लेकिन हमारे पास डेटा तो करेक्ट फॉर्मेट में ही खुलेगा, वो सीक्वेंसिंग करेगा, भले वो तो बैक से दोबारा। हाँ, तो ये चीजें होती है उसके पीछे कि ट्रांसपोर्टेशन पे ये सेगमेंटेशन और रीअसेंबली होती है। हमें लगता है हमारा फाइल 100 MB का या 1 GB की फाइल है, तो 1 GB का तो लिंक था नहीं, तो कैसे हो रहा है, तो उसमें सेगमेंटेशन करा हो, ठीक है। और हम देखते हैं रिज्यूमिंग कैपेबिलिटी भी हम देखते हैं, IDM यूज करते हैं, ठीक है, तो रिज्यूमिंग कैपेबिलिटी कहां पर हो रही है, ये जब सेगमेंटेशन था, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल यूजिंग विंडोज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लो कंट्रोल? Suppose you have a PC and this is your server. It is not necessarily that your server is directly connected with your PC. In between there is a ISP. ISP means internet, or internet means multiple routers. Okay, so it may happen that it has a gigabit link or it has only Ethernet link. It means its sending or receiving capacity is much lower than सर्वर की जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है भेजने की, वो कितनी है, गिगबिट है, 1000 Mbps, और इट हैज ओनली 10 Mbps। भाई शेयर्ड मीडिया रिसीव भी इतनी कर सकता है एक बार में, 10 Mbps और उतनी भेज सकता है। अब ये 1000 Mbps से क्या करेगा, अगर स्पीड से डेटा भेजेगा तो ये तो 10 Mbps ही रिसीव करेगा, इसकी एक बफर मेमोरी होती है,
जैसे डेटा आया आपने बफर में डाला 10 Mbps खाली हो गई, अपना डेटा उठा के बफर में डाला 10 Mbps खाली हो गई, फिर रिसीव करूंगा 10 MB का पैकेट, वो बार बार 1000 ही भेज रहा है, तो 990 Mbps का पैकेट क्या होगा, हमेशा लॉस होता चला जाएगा, हमें ऐसे लॉस होंगे। सो वही जो एग्जांपल मैंने दिया, इफ आई हैव 4 hands and if I throw 4 balls to you simultaneously and you have only 2 hands, so what will happen, two ball will drop on the earth, okay ना, गिर जाएंगी, ये यहाँ पर भी होगा। तो क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, आज ऑटो नेगोशिएशन होता है, इट एडवर्टाइजेस विंडो साइज, so in transport layer it uses the concept of windowing. In windowing it advertises its window size. Window size means the receiving or transmission capacity of a device. तो ये क्या कह रहा है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है 10 Mbps, ये विंडो साइज क्या करेगा, एक फील्ड होती है हेडर, आप पढ़ेंगे ना, तो उस फील्ड में क्या विंडो साइज में साइज लगा के भेजेगा कि मेरा साइज क्या है 10 Mbps, ये भेजेगा 1000, दोनों आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तुम्हारी 10 है मेरी 100 है, उसको पता लग जाएगा कि जो छोटा वाला होगा अकॉर्डिंग टू दैट द हायर वन विल डिक्रीज इट्स रेट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये दोनों क्या करेंगे, आफ्टर नेगोशिएशन उन्होंने क्या करा कि ये 10, इसकी विंडो साइज 10 है, तो ये क्या करेगा 10 Mbps ही भेजेगा स्पीड में, ठीक है। दिस हैपेंस इन दिस प्रोसेस, so this process is known as flow control using the technique of windowing if we talk about TCP, okay। तो फ्लो कंट्रोल कहां पर होता है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर में। देखो इट हैपेंस इन अल्ट्रा सेकेंड, हमें लगता है कि इतनी लंबी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं ना, ICMP पैकेट जाता है, सोर्स पैकेट होता है, सोर्स होता है, राउटर पे जाके पैकेट चेंज होता है, फिर वहां जाता है, वहां जाता है, ये अल्ट्रा सेकेंड में आ जाता है। ये सारी प्रोसेस जो होती है बिल्कुल विद इन अल्ट्रा सेकेंड्स में होती है, क्योंकि इट इज टोटली मैकेनिकल। ये हम ह्यूमन स्टैंडिंग में हमें लग रहा है कि ऐसा ऐसा होता होगा, कितना लंबा टाइम लगता होगा, इट्स हैपेंड अल्ट्रा सेकेंड। अब आप सोचो कि आप यूट्यूब का सर्वर कहाँ होगा, हम यहाँ पर करते हैं तो गाना तुरंत डाउनलोड हो रहा है, तो डेटा तो पता नहीं इंटरनेट से होते हुए, अभी यूट्यूब का जो सर्वर होगा वो जनरली अमेरिका में कहाँ पर है, वहां से उठ के आ रहा है हमारा रियल में डेटा, क्या हो सकता है वो उसको कैश करके हमारे लोकल, वो स्पेसिफिक गाना कहीं पर हमारा लोकल कैश में पड़ा हुआ है, बट वो नहीं है, कोई नया गाना है जो कि एक्चुअल सर्वर पड़ा है। तो आप अब जैसे गूगल क्रोम में क्या फायदा था, कैश, इसके अंदर एक चीज इंप्लीमेंट हो गई कि ये कैश करता है, जैसे आपने कोई पेज खोला है ना, तो उसको अपनी कैश मेमोरी सेव कर लेगा, सेम टाइम अगर आप वही पेज खोलोगे तो वो सर्वर पे रिप्लेस नहीं करेगा, अपनी कैश मेमोरी उठा के आपको दे देगा, तो और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, AWS वाले भी यही कर रहे हैं, कैश से बना रहे हैं डेटा सेंटर में अपने, मुंबई से उठ के आ जाएगा। हाँ, okay, and the error control using RCS. Let's understand what is error control. We have seen the flow control. Error control, so it detects the error as well as it also resolves the error. Okay. Suppose we have two devices. It can be a router or PC, printer, कोई भी चीज हो सकती है, ये दोनों communicate कर रहे थे। Suppose it sends the packet, in this packet there is a text file in which it is written it is written hello world लिखा था, इतना बुरा लग रहा है, it is written hello world, इस फाइल में hello world लिखा था, it sends the file and PCB has received the file, और PCB ने जब वो पैकेट खोला तो उसमें ओनली वर्ड लिखा था, हेलो आईडी नहीं है, तो ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे हेलो भेजो, भेजेगा, इसको पता कैसे लगा कि उसने भेजा क्या था, हाउ पीसीबी नोज कि व्हाट इज सेंट बाय द सेंडर। नहीं, अभी एफसीएस का रोल ही नहीं आया ना, मैं बता रहा हूं कि अभी आपने कोई डेटा मुझे भेजा, मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है, बट हाउ आई नो व्हाट यू हैव सेंट, आपने भेजा क्या था, ठीक है। अब पैकेट तो आ रहा है, वो पैकेट के अंदर का डेटा भी तो मिस हो सकता है, राम आपने भेजा, राम पहुंच गया, राम में से ए हट गया तो आरएम हो गया ना, तो अब हो सकता है उसे तो ये पता लगा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय में रम आरएम हो गया, ए तो हट गया, तो उसे कैसा पता, उसे तो पता लगा 5 पैकेट आने थे, आ गए 5, और 5वें पैकेट को जब खोल के देखा तो आरएम यानी कि रम या दूर बोल लो इज अ गुड बॉय। Is it correct information it has received? No. How PCB
नो व्हाट इज सेंड बाय द सेंडर, एक्चुअल में क्या डेटा कंटेंट उसने भेजे थे ये कैसे पता लगेगा? इट uses the concept of FCS, means frame check sequence. What it does basically, when it sends the data to a receiver, first it's run into an algorithm, एक cyclic redundancy एक algorithm में इसको run करता है, and after running this data into an algorithm it gets its product, it gets the product. अब वो product क्या होता है? वो product भी ऐसे होता है, f star percentage hash, इस तरीके से एक वैल्यू निकल के आती है after running the data into an algorithm. Okay, so it gets the product. This value is known as FCS, checksum. This value is known as checksum. अब ये क्या करेगा? When it sends the packet to B, so it adds a header FCS. इस FCS header के अंदर ये checksum value add कर देगा, ठीक है? With the data it adds its checksum value, and when the PCB, देखो ये डेटा था, ये डेटा का एक बॉक्स है, मैंने बताया ये क्या करता है, FCS एक फील्ड होती है, मतलब एक हेडर ऐड करता है और हेडर के अंदर मतलब डेटा के साथ एक और डब्बा लगाता है बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर क्या करता है, इस डेटा को रन करता है एक एल्गोरिथम में, और एल्गोरिथम में रन करने के बाद एक हेक्साडेसिमल मतलब हैशिंग इसे बोलते हैं, तो एक वैल्यू निकल के आती है प्रोडक्ट, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, FX STS कुछ भी, वो उसने यहाँ पर लगा के भेज दी FX2CS, FX2CS किसके लिए? हेलो वर्ल्ड के लिए गई. When the PCB receives the data, it simply does not accept the data. It simply does not accept the data. First it does, again it's only take the data only, data portion only, and it runs the data into same algorithm. Or after running the algorithm, it will get the product. And if the product, it will get the product. If the data is hello world, it will get the same product, FX2CS. And first, then it will check the checksum value. If the checksum value is matched, then it will receive the data. If there is a difference in the checksum value, it will simply discard the data. समझ में आ गया आपको? तो डेटा को एक एल्गोरिथम में रन करता है, और एल्गोरिथम में रन करने के बाद एक चेकसम वैल्यू निकल के आती है, वो FX2DS कुछ भी निकल के आएगी. अब हेलो वर्ल्ड में अगर आप ओ भी हटा दोगे ना, अगर वाइल सेंडिंग बीच में किसी ने हैक कर लिया या मैनिपुलेट कर दिया कोई चीज, ठीक है, तो जैसे ही मैनिपुलेशन करेगा हेलो वर्ल्ड में ओ भी अगर गायब हो जाएगा, तो जब वो रन करेगा हेलो वर्ल्ड को, उसमें तो ओ गायब हो गया, जैसे ही ओ गायब होगा तो एल्गोरिथम रन होगा, तो डेफिनेटली वैल्यू उसकी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी, और डिफरेंट वैल्यू आएगी, और वो क्या करेगा, जो सेंडर के साथ FCS चेकसम वैल्यू लग के आई, और वो क्या करेगा, अपने दोबारा कैलकुलेट करने के बाद मैच करेगा, अगर डिफरेंस आया तो सिंपली डिस्कार्ड द डेटा. तो यूजिंग दिस टेक्निक इट्स यूजेस द कांसेप्ट ऑफ एरर कंट्रोल. इस तरीके से वो एरर कंट्रोल करता है. सेंडर्स के साइड से मिस्टेक थोड़ी होगी. मैंने आपको बोला सेंडर जब डेटा सेंड करता है, कोई भी डेटा उसने सेंड करा, उसको रन करेगा एल्गोरिथम में, और उसके साथ एक प्रोडक्ट वैल्यू निकल के आएगी. सपोर्ट प्रोडक्ट वैल्यू निकल के आई FCS, ये प्रोडक्ट वैल्यू निकल के आई, तो डेटा के साथ इस वैल्यू को लगाकर भेजेगा FCS. अब जब ये रिसीवर के पास आई ना, तो रिसीवर सिंपली डेटा को रिसीव नहीं करेगा, वो डेटा जो है ना, उस डेटा को दोबारा रन करेगा एक एल्गोरिथम में, और एक वैल्यू निकल के आएगी. अगर वो डेटा सेम होगा तो वैल्यू वही निकल के आएगी FCS. तो वो इस वैल्यू जो साथ में लग के आई थी चेकसम वैल्यू, उसके साथ मैच करेगा. मैच कर गई तो रिसीव कर लेगा, मैच नहीं करी तो इट विल सिंपली डिस्कार्ड द डेटा. अंडरस्टैंड? सर ये एल्गो हमें पता है? एल्गो हमें पता है क्या होती है, कैसे कैलकुलेशन? अरे बहुत सारे एल्गोरिथम है, MD5 है, हैशिंग एल्गोरिथम है. देखो बेसिकली यू शुड नो हाउ द थिंग्स विल हैपन. हम लोग काम नहीं करते ना, आपको बस पता होना चाहिए डेटा कैसे जा रहा है, क्या क्या चीज हो रही है. अब आप बात कर रहे हो कि वही वाली बात कर दी आपने. हाँ, अब आप बात कर रहे हो, मैं जब चाबी घुमाता हूँ कार में, तो अंदर पीछे कहाँ से तार जाके क्या क्या होता है, इतना डीप में नहीं जाना है. अगर आप इतना डीप में आपको जाना भी नहीं है, आपको बेसिकली इंप्लीमेंट करना है राउटिंग, ठीक है ना, ये चीज है. उसके लिए अलग से हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ो कैसे होता है. हाँ, होता ही नहीं है, ठीक है. आपको बस ये पता है हैशिंग क्या करता है, यही करता है. अब आप कहोगे हैशिंग करता कैसे है, तो हैशिंग के MD5 और शाह को पूरा पढ़ो करता कैसे है. पूरी बीटेक लेवल पे जैसे होता है ना, कि पहले एक वैल्यू भेजेगा, उसको उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे हम प्रूव करते हैं किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, ऐसे है पूरे दिए हुए. मेरे पास वो भी है, ठीक है ना, बट वी डोंट नीड टू गो इन इट, इतना अंदर डीप हमें नहीं जाना, ठीक है ना. बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी
लेयर। तो ये विंडो सिस्को है, मतलब अगर मेरे पास यूनिवर्सल का राउटर है सामने और यहाँ सिस्को का राउटर, मैंने कहा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जो प्रोटोकॉल उसने इंक्रिप्शन के लिए यहाँ यूज करी, दूसरी डिवाइस भी इंक्रिप्शन के लिए सेम प्रोटोकॉल यूज कर रही होगी। जब हम ऑथेंटिकेशन भी करते हैं ना, तो हम इधर कॉन्फ़िगर करते समय बताते हैं MD5, तो उधर भी MD5 बताएंगे, उधर शाह नहीं बताएंगे। भाई आपने इंक्रिप्ट करा है R को 1, ये बताता है, MD5 कहता है कि R का मतलब 1 होता है। सिंपल भाषा में समझो, राम हमें भेजना है और MD5 ये कहता है कि R का मतलब 1 है, A का मतलब 2 है और M का मतलब 3 है। तो उधर भी अगर MD5 होगा तो उसे ऑलरेडी पता है कि R का मतलब 1 होता है, और आप भेजोगे 1 2 3, तो 1 को डिक्रिप्ट करके वो R ही बना देगा। अब इधर शाह क्या कहता है कि R का मतलब Z होता है और A का मतलब X होता है। अब इधर आप कुछ और भेज रहे हो, उधर डिक्रिप्शन टेक्निक कुछ और है, तो फिर मिसमैच हो जाएंगे, नहीं हो। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि जो मल्टीपल वेंडर से रन कर जाए, ठीक है। So we have discussed about error control, flow control, sequencing and segmentation. So basically 2 main protocols are resides in it, TCP and UDP. One more thing you should remember, in transport layer your packet, your data is known as segment. क्योंकि जब ये डेटा आता है ना, तो इस डेटा पे क्या करता है, वो एक हेडर ऐड करता है, वो TCP का हो सकता है या UDP का। तो जो TCP और UDP का हेडर यूज करेगा ना, ऐड करेगा इसके साथ, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ओके, दिस प्रोसेस नोन एज इनकैप्सुलेशन। आफ्टर इंक्लूडिंग द हेडर ऑफ वेरियस प्रोटोकॉल TCP और UDP, इट बिकम्स द सेगमेंट। तो इन ट्रांसपोर्ट लेयर यू कैन से इट इज अ सेगमेंट। Moving back to the network layer. Network layer is responsible for logical, 3 main काम है इसके, logical addressing, routing and path determination. Okay, what do you understand by logical addressing? It adds source and destination address. Simply आपका ये डेटा है, यहाँ पर आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसको बता भी दिया इस डेटा को भैया तुम लेके जाओगे, कौन? TCP, there's a person called TCP, आप लेके जाओगे। अब वो कह रहे हैं सर कहाँ लेके जाऊं, where I should go, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो what you will do, आप क्या करते हो, इसमें एक लेबल ऐड करोगे ना भैया, यहाँ से टू, जब आप कोई लेटर भेजते हो, आप भेजते हो ना टू और फ्रॉम, तो सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। तो जो आप एक हेडर इसमें और ऐड करते हो, यू ऐड वन मोर हेडर। ओके, तो यहाँ थोड़ा साफ से लिख दो, दिस इज इनिशियली इट इज अ डेटा, when it is received on the transport layer it becomes your segment, you have added the header of TCP or UDP, and when it received on the network layer, when it is received on the network layer, it adds the source and destination information. अब वो source और destination information क्या होगी, source IP और destination IP. Suppose it's 10.1 or it has to go on 20.1. okay, so this header, this becomes your data, this becomes your segment. इतना data था, ये segment हो गया, and this whole packet becomes a packet. That's why I have written here the data in transport layer is known as transport layer, लिखा मैंने, ये network layer हो गया, it is a typo here, वो copy paste करा होगा, ठीक है। तो data in network layer is packet. okay, तो यहाँ packet बन जाता है। okay, ये specific term है, जनरली हम packet ही packet बोलते हैं, data ही data बोलते हैं, but technical term में in the network layer में जब header add होता है, source और destination, तो it becomes your packet. okay, so this is called logical addressing. Or what is routing? At layer 3 it forward packets based on the IP addressing. So ये routing का मतलब होता है to move packet from one source to destination. Third is path determination, chooses the best path. So in network layer, suppose your PC is here and this is your server, YouTube server. I told you are not directly connected, there is the internet between you, there is the ISP, so you may have multiple paths to reach the destination. मैं ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पर लिया कंट्रोल है, देखो ये आपका पीसी है, पीसी कनेक्टेड था स्विच से, स्विच कनेक्टेड था राउटर से, ये आपका कंपनी का एज राउटर है, ये कंपनी का आपका एज राउटर है, ये राउटर इस राउटर से कनेक्टेड ISP से, ये इस राउटर से कनेक्टेड है, ये इस राउटर से कनेक्टेड है, ये इस राउटर से कनेक्टेड है, ये इस राउटर से कनेक्टेड है,
इस राउटर से, फिर ये इस राउटर से, फिर इस राउटर से, और फिर ये क्या है, यहाँ एक सर्वर है, तो ये सर्वर से कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है। सो ये YouTube का सर्वर है, इसको YouTube के सर्वर रिक्वेस्ट भेजनी है। So maybe you are connected in this fashion. So how you will go to server? कैसे आप जाएंगे? This is path 1 and this is path 2. Which path you will choose? Which path you will choose? Depend on the various routing protocol. Hop count हम RIP में यूज करेंगे तो depend on the various routing protocol. But basically layman भाषा में हम वो path इस्तेमाल करेंगे which is the shortest. So if you see here, it has only this is the shortest path. So we will use 1. तो यहीं पर लॉजिकल और फिजिकल टोपोलॉजी भी क्लियर हुई कि लॉजिकली आपका डेटा ऐसे जा रहा है जबकि फिजिकली आप ऐसे ही कनेक्टेड हो। ओके, सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, नेटवर्क लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग मींस एट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राउटिंग मींस फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेसिंग, एंड द थर्ड वन इज पाथ डिटरमिनेशन, चूजेस द बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन द various routing protocol which you have implemented on the router. It can be a RIP, it can be a EIGRP, OSPF, anything else. Okay. Or note that in the network layer, the packet is known as the data is known as packet. Data link layer. This layer is responsible for node-to-node delivery of data on a local network. इस लाइन को याद रखना. This layer is responsible for node-to-node delivery on a data on a local network. मतलब जो actual delivery होती है ना आपकी, वो data link layer पे होती है. How? See here. ये आपका PC था, इसका IP है 10.1, 192.168, 10.1. ये कनेक्टेड है स्विच से, स्विच कनेक्टेड है राउटर से, राउटर ठीक है, और ये आपका सर्वर रखा है. सर्वर पे आईपी चल रहा था 172.16.32. इसका सर्वर का आईपी 32.1 है. ये कनेक्टेड होगा स्विच पे कहीं पर भी, ठीक है, और इसके आगे लगा होगा राउटर, और ये राउटर कनेक्टेड होंगे आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, अपनी सिटी के, ये अपनी सिटी से, एंड ऑल आईएसपीस आर ऑलरेडी कनेक्टेड. आईएसपी कनेक्टेड है ऑलरेडी. हमने अपने शहर के आईएसपी से कनेक्शन लिया दिल्ली के, और एक अमेरिका में है, उसने अपने आईएसपी से कनेक्शन लिया, और आईएसपी ऑलरेडी कनेक्टेड. इट मींस वी आर कनेक्टेड. इट मींस वी आर कनेक्टेड. ओके, मैं बता क्या रहा था. हाँ, तो ये पैकेट लेयर 3, तो मैंने कहा था व्हेन यू आर सेंडिंग अ डेटा टू अ recipient, so it needs 2 addresses. One is logical address and one is physical address. What does logical address do? In logical address, through logical, after seeing the logical address, router will forward the packet to this network, to this network. तो ये आपका 192.168 सोर्स है, डेस्टिनेशन क्या 30.1. तो ये पैकेट राउटर से आईएसपी पे जाएगा, आईएसपी फॉरवर्ड करके इस राउटर तक ले आएगा, सिर्फ इस राउटर तक लेके आएगा. ठीक है, क्योंकि नेटवर्क उसको पता ना यहां से वहां जाना, तो यहां से अमेरिका तक तो पहुंच गया, उस राउटर पे पहुंच गया, उसके वैन इंटरफेस पे पहुंच गया. अब लोकल नेटवर्क इंटरफेस पे कैसे जाएगा? क्योंकि जब ये पैकेट फॉरवर्ड करेगा स्विच को, तो स्विच तो काम करता है मैक एड्रेस पे, तो इसको क्या पता होना चाहिए, इसका मैक एड्रेस. ठीक है, तो जब इसका मैक एड्रेस पता होगा तभी. अगर इसको मैक एड्रेस नहीं पता होगा तो ये पैकेट कहाँ आकर रुक जाएगा, सिर्फ राउटर पे. लेकिन इसने पैकेट पहुंचा तो दिया सोर्स से डेस्टिनेशन तक, दिल्ली से अमेरिका तक, बट वहां के लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, मैक एड्रेस. वो सेम प्रोसेस चलती है, इस राउटर को चाहिए इसका मैक एड्रेस, तो एक आर्प जनरेट करेगा, मैक एड्रेस पता करेगा, बट मैक एड्रेस चाहिए. until unless it don't have a MAC address, your packet is not delivered. होगा ही नहीं. तो मैक एड्रेस जब पता लगा इसने डिलीवर कर दिया. इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा है स्पेसिफिकली कि the layer, this layer is responsible for node to node delivery. Node can be a router or switch or a PC. ठीक है, तो एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए एक्चुअल आपको क्या चाहिए, मैक एड्रेस, और वो वर्क होता है, वो कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे. इसीलिए स्विच को लेयर 2 डिवाइस कहते हैं. ओके, so its main function are framing, physical addressing and error detection only. So what do you understand by framing? Framing means when you receive a data, suppose ये यहाँ जब आपके पास पैकेट आता है, हाँ, तो it does a framing. Framing means that it is your data, वहां पर आया किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो आपने ऐड कर दिया हेडर TCP UDP का, it becomes a segment, and when it receive on the network layer you add a source IP or destination IP. So it is your data, it is your, this whole becomes your segment, this whole becomes your packet, and
when it receive on the data link layer, so it needs to physical address, that is called source MAC, destination MAC or source MAC. ठीक है, तो this process of adding the source or destination MAC address, this process is called a framing. Okay, and after framing it becomes the frame. So at data link layer, so data is called as a frame. Okay, so this whole process is called framing, and in framing what it does the physical addressing. Physical addressing means assigning a physical address. Okay, and what is error detection? देखो, if you see closely to the Ethernet header, so your Ethernet header is look like this. First is your preamble field, एक preamble field होती है, ठीक है, फिर आपका destination MAC address, फिर source MAC address होता है, destination फिर source MAC address, फिर एक type field होती है, किस टाइप का डेटा है, या length type या length, कितनी length है. लास्ट में क्या होता है, एक FCS ट्रेलर होता है. क्या होता है इसमें, ईथरनेट का एक ट्रेलर होता है, उसकी जो लास्ट फील्ड होती है ना, फ्रेमिंग का जो पूरा पैकेट देखेंगे तो लास्ट में उसकी एक फील्ड होती है FCS. इट डज द सेम थिंग, बट इन डेटा लिंक लेयर if the value of FCS is not matched, it simply discard only, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा जनरेट. ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोबारा हो जाती है. दिस इज द डिफरेंस. तो ये एरर डिटेक्शन के लिए ओनली, तो इसके हेडर में ही FCS फील्ड है. ठीक है, तो 3 मेन फंक्शन है. और वन मोर थिंग, हाँ, it contains 2 sub layer. As in the transport layer we have 2 main protocols, TCP and UDP. In data link layer there are 2 sub layers working under it, that is LLC, logical link control layer. It is responsible for transferring the packet to the network layer of the receiver, that is receiving. जब आप रिसीव करोगे तो आप फिजिकल से डेटा लिंक पे जाओगे, फिर डेटा लिंक से नेटवर्क पे जाओगे. तो डेटा लिंक से नेटवर्क पे जाने के लिए कौन दे रहा है, ये LLC प्रोटोकॉल is responsible for it. And what is MAC? Media access control layer. It is used for transferring the frame over the network. Okay, लिंक. देखो, जब आप रिसीव करोगे तो सबसे पहली लेयर कौन सी पड़ेगी, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर. तो डेटा लिंक लेयर से उठाकर उसको देना है नेटवर्क लेयर को. तो इस उसको देने का जो काम है ना, उस प्रोसेस को पीछे कौन हैंडल कर रहा है, LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल. ये जब रिसीव कर रहा है, मैंने इसलिए स्पेसिफिक लिखा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग. ठीक है, और इधर से भेजोगे तब भी तो वो रिसीव कर रहा होगा. जब आप सेंड कर रहे हो तो वो रिसीव कर रहा होगा, जब उधर से भेज रहा होगा तब भी तो आप रिसीव कर रहे हो. तो उस टाइम LLC क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है. और मैक आपका क्या करता है, बेसिकली फ्रेमिंग. तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द फ्रेम ओवर द नेटवर्क. फ्रेमिंग के अंदर ये 2 प्रोटोकॉल पीछे बिहाइंड होती है. प्रोटोकॉल नहीं दिखते, आपको हेडर दिखता है, हेडर के अंदर होता है ऐसा. ठीक है, हाँ. ये रिसीविंग वाली साइड करेगा ना काम. रिसीविंग में डेटा लिंक ले लो, आपने मुझे भेजा स्टार्ट कर दिया रिसीवर, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कैसे उसको एरर को करेक्ट कराया. ये मैंने पहले तो बताया कि तो रिसीविंग साइड पर वहां से तो ऊपर करेक्टेड होके आ ही रहा है. ये इसके फील्ड में एक है सिर्फ डेटा करेक्शन. उस केस में सिंपली डिस्कार्ड ही हो जाता है, वो भेजेगा नहीं भेजेगा, डेटा नहीं आएगा. ओनली आप, मैं समझ गया आपका, नहीं जाएगा डेटा, क्योंकि इसके हेडर में ऐसी चीज है, उसके हेडर में एक ट्रेलर है, ट्रेलर में FCS वैल्यू है, तो वहां ट्रांसपोर्ट लेयर में तो हो जाता है दोबारा में, यहाँ पर सिंपली डिस्कार्ड होगा, वो डेटा नहीं जाएगा दोबारा. हाँ, वहां जाएगा ही नहीं दोबारा. तो ट्रांसपोर्ट तक तो पहुंचे नहीं ना है, ट्रांसपोर्ट से तो होते ही आ रहा है. जब सेंड कर रहे हो तो एप्लीकेशन लेयर से तो होते हुए आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर से तो होते हुए आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से होते हुए तो आ रहा है. नहीं, ऐड तो क्या आ गया. हाँ, हम उसको डीकंप्रेस कर रहे हैं. हाँ, हमने पहले उसको फिजिकल पे किया, डेटा लिंक पे किया, डेटा लिंक पे रिजेक्ट हो गया तो फिर देखो ये कम्युनिकेशन ना लेयर टू लेयर भी होता है, लेयर टू लेयर भी होता है. अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे, लेयर टू लेयर होता है. बेसिकली यहाँ पर उन्होंने समझाया इसमें और उसमें डिफरेंस ये है, वहां पैकेट जनरेट होता है यूजिंग अ सीक्वेंस, वहां पर हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर नहीं करेगा. इसके ट्रेलर में है ही ऐसा कि करता है. ठीक है, पर जो वहां पे FCS
वैल्यू जब से हेडर ऐड हुआ था ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो चेकसम है, ये एफसीएस है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। इसमें सोर्स डेस्टिनेशन मैक इसको भी कंसीडर कर रहा है, वो सिर्फ डेटा को कंसीडर कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? उसने वो एल्गोरिथम सिर्फ डेटा पे चलाई। जब आप इसको डीप में पढ़ोगे तो ये डेटा पे नहीं चला रहा है, सिर्फ फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो ये सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, टाइप और डेटा इन सबको मिक्स करके एक जनरेट करेगा। वो सिर्फ डेटा को कर रहा था। आपका फ्रेम फॉर्म हुआ कि नहीं, इसको अगर आप डीप में पढ़ोगे अलग से तब आपको पता लग जाएगा फ्रेम चेक सीक्वेंस, दैट इज चेकसम। वहां चेकसम होता है, ये फ्रेम चेक सीक्वेंस है, ये एफसीएस है। तो इसमें वो उसमें सिर्फ वो डेटा को रन कर रहा था एल्गोरिथम में। इसमें डेटा के अलावा ये और भी फील्ड्स उठाता है। सर एक्चुअली तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ही तो होता है ना। अरे वो एफसीएस चेकसम था वहां पर। काम दोनों का एक है, बट मैंने बता रहा हूँ देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैट इज चेकसम एंड दैट इज एफसीएस। ये फ्रेम चेक सीक्वेंस है। अगर आप इसको डीप में पढ़ोगे, पढ़ लेना नेट पे जाके, तो ये सिर्फ डेटा को नहीं उठाता, डेटा के अलावा फ्रेमिंग सही से हुई कि नहीं हुई तो उसको भी कैलकुलेट करता है ये। हाँ समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। बट आई एम टेलिंग यू ना, इतना डीप में जाओगे तो मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट, आपको पढ़ना है उसको पढ़ना। चेकसम और एफसीएस में क्या अंतर है? ये सिर्फ डेटा को नहीं कर रहा है, ये डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन उसको भी लेके निकालता है। Physical layer. The main functionality of the physical layer is to transmit the individual bits from one node to another node in the form of signal. From one node to another. समझ में आ गया? अब जो आपका डेटा ऊपर से आ रहा है वो जब जाएगा in the form of signal तो क्या होगा? अगर आप यूज कर रहे हो कॉपर केबल, suppose you are using a copper cable, तो क्या जाएगा? वो डिजिटल सिग्नल में जाएगा, ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हो फाइबर ऑप्टिक तो वो लाइट सिग्नल में चेंज कर देगा। अगर आप यूज कर रहे हो एयर मींस वायरलेस तो वो रेडियो और सैटेलाइट सिग्नल में रेडियो फ्रीक्वेंसी में डेटा भेजता है। तो आपका डेटा फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है, या लाइट सिग्नल में चेंज हो जाता है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है, बेस्ड ऑन द मीडिया यू हैव यूज्ड द फाइबर ऑप्टिक केबल, तो वो लाइट सिग्नल, एक शीशे की वो होती है उसमें एक लाइट जाती है, तो आपका डेटा लाइट की फॉर्म में जा रहा है, लाइट सिग्नल में। हवा में जा रहा है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में जा रहा है आपका, और कॉपर केबल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। तो बेसिकली फिजिकल लेयर ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन नोड टू अनदर यूजिंग अ फिजिकल मीडिया, और इट कैन बी अ कॉपर, इट कैन बी अ फाइबर ऑप्टिक, और इट कैन बी अ एयर। एग्जांपल में लिख सकते हैं आप, ओके। तो ओवरव्यू में देखो, यही बताया मैंने, अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, ट्रांसलेट, encrypt and compress data, establish, manage, terminate session, okay, provide reliable process to process message delivery and error recovery. Error recovery is done here. Move packet from source to destination based on the logical address. That's why it is written provide internet networking. Organize bits into frame to provide hop to hop delivery. क्योंकि आप ये चीज हमेशा याद रखें कि जब आप कोई पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजते हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी विल रिमेन सेम ऑलवेज। तो चेंज क्या होता है फिर? मैक एड्रेस हॉप टू हॉप चेंज होता रहता है। सोर्स टू डेस्टिनेशन आईपी हमेशा वही रहेगा। 10.1 को 20. पे जाना है, राउटर 1 पे गया, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी सेम। लेयर 2 एड्रेस चेंज होते चले जाएंगे। फॉरवर्ड अब उसे आगे भेजना है तो उसका क्या चाहिए? मैक एड्रेस आगे भेज दिया, उसको पता है सोर्स मेरा ये है। लास्ट में जाकर उसे पता लगता है कि डेस्टिनेशन आईपी तो इट इज इन माय लोकल नेटवर्क, तो सीधे भेज देता है, ठीक है। लेकिन तब भी क्या चाहिए? मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि मैक एड्रेस विल चेंज, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी विल नेवर चेंज, ओके। टीसीपी आईपी हिस्ट्री बता देगा, कुछ नहीं। टीसीपी आईपी रियल में एग्जिस्ट होता है। कैसे? टीसीपी आईपी आपने नाम सुन ही लिया, लेयर 4 पे टीसीपी यूज हो रहा है। जनरली यूज क्या होता है? टीसीपी, यूडीपी कम होता है। अब कहां होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए टीसीपी बोल दिया। और आईपी प्रोटोकॉल लेयर 3 पे यूज होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टीसीपी ओवर आईपी। जनरली रियल में टीसीपी और आईपी है। तो थ्योरेटिकल उन्होंने समझाने के लिए उस प्रोसेस को उन्होंने 7 लेयर पे तोड़ा था। बेसिकली टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल डज द सेम थिंग, बट इट इन दिस मॉडल इट हैज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर। बट नाउअडेज आजकल 5 लेयर ही चलती है, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट में शुरुआत में जब ये बना था 4 थे, इसको क्या अपडेटेड डॉक्यूमेंट में देखोगे। अब हम नेटवर्क एक्सेस लेन नहीं बोलते हैं, अब हम क्या बोलते हैं देखना। बट बिफोर टेलिंग यू दिस आई एम टेलिंग यू द हिस्ट्री, व्हाट इज टीसीपी आईपी मॉडल।
देखो ड्यूरिंग द वार आपने सुना पहले ARPANET क्या था? ARPANET एडवांस रिसर्च ARPA प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ओके. तो देयर इज the Defense Advanced Research Project Agency means DARPA, the research branch of the US Department of Defense, जो कि एक रिसर्च ब्रांच थी US Department of Defense की, इसलिए इसको DoD मॉडल भी कहते हैं. ओके. Created the TCP/IP model in the 1970 for the use in ARPANET. उन्होंने क्या करता ड्यूरिंग द वार, वो एक बटालियन को दूसरे बटालियन से कम्युनिकेट कराना चाहते थे, तो उन्होंने एक चीज लेके आए थे ARPANET, एक तरीके का वैन कनेक्शन था. हाँ ठीक है, वैन कनेक्शन था वहां पर. तो सिर्फ पूरा वर्ल्ड वाला नहीं था, उन्होंने बस एक से एक को कनेक्ट करना था, इस तरीके से ARPANET, उसको उन्होंने नाम दिया ARPANET, एडवांस रिसर्च क्या बोला मैंने, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. NET मींस नेटवर्क. ठीक है. इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क दैट प्रोसीडेड द इंटरनेट. इसी को हमने एक्सटेंड करके आज इंटरनेट का रूप दिया. ओके. तो शुरू में जो उन्होंने यूज करा ना, ये प्रोटोकॉल यूज करते थे TCP और IP वहां पर. तो 1970 में आ गया था TCP/IP. was originally designed for the Unix operating system, but शुरू में ये क्योंकि स्पेसिफिक था किसके लिए, Unix ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो एक ही सिस्टम सिर्फ Unix ऑपरेटिंग सिस्टम ही कम्युनिकेट कर पाते थे आपस में, जो Unix पे काम करते थे. Linux वाले नहीं कर पाते थे. विंडोज वाला जब विंडो आया तो विंडोज नहीं कर पाता था, तो उन्होंने OSI मॉडल में फिर OSI मॉडल को फॉलो किया, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिफरेंट वेंडर्स के लिए. बट and it has been built into all of the operating system that came after it, but later on उन्होंने क्या कर दिया, ये मॉडल जो है धीरे धीरे Unix के बाद Linux OSP सब पे हो गया. तो nowadays TCP/IP is more popular. ओके. तो वो सिर्फ theoretical रह गया है. ठीक है. So now comes TCP/IP. वो मैंने थोड़ी हिस्ट्री बताई थी. The TCP/IP protocol suite was developed prior to the OSI model, and therefore the layers in the TCP/IP protocol suite do not match exactly with those in the OSI model. Okay. The original TCP/IP protocol suite was defined as 4 software layers built upon the hardware. Today, however, TCP/IP is thought of as 5-layer model with the layers named similarly to the ones in the OSI model. आज क्या हो गया देखो, आप एक दो डेविड बॉम्बल और अंग्रेजों की वीडियो भी देखोगे ना, तो सिस्को के ट्रेनर है, उनके वीडियो देखना आप, वो पढ़ाते हैं. क्योंकि हम लोग जनरली क्या, ये यहाँ पर उन्होंने बोला था ये होस्ट टू होस्ट लेयर, क्या होस्ट टू होस्ट लेयर बोलते हैं हम लोग. हम आज भी किस पे काम करते हैं यार, फिजिकल लेयर पे क्या हो रहा है. तो जनरली TCP/IP मॉडल नाउअडेज बिल्कुल अपडेट बता रहा हूँ, फिजिकल रिमेन फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एंड these 3 layers are combined as a application layer. और जो इनिशियली ने डॉक्यूमेंटेड जो है, डॉक्यूमेंटेड में क्या है, जैसे एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इज अ होस्ट टू होस्ट लेयर, इन दोनों को कंबाइन, नेटवर्क है इंटरनेट, और इन दोनों को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस बोल दिया. बट रियल में हम नेटवर्क ऐसे होस्ट नहीं बोलते, हम रियल में जो हम बोलते हैं ना, ये बोलते हैं फिजिकल, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, ऊपर वाले को एप्लीकेशन बोल दिया. This is your TCP and IP model. So initially it was introduced by the DARPA in 1970 during the war. They want to communicate with each other, so they are using TCP/IP. But basically it was initially built on the Unix operating system. That's why it was not popular at that time. But nowadays, at the time goes down, so it has built into different operating system. So आज TCP/IP model जो है पूरा open source है और सब उस vendors पे चलता है. That's why TCP/IP is more popular. So basically it is called TCP/IP protocol suite because under these protocols different protocols reside in it. Okay. So MAC address as I have already told you. ठीक है. तो आज हमने OSI layer और TCP/IP की layer देख लिया, दोनों क्या होता है, और networking fundamentals पूरा clear कर लिया. Then we will move on to IPv4 addressing. पैकेट तो बताएं. When I'll do the lab, I will tell you the packet flow. But before knowing the packet flow, should know what is frame, what is packet, what is segment, and what is source MAC address, destination MAC address, what is MAC address. तो MAC address भी पता लग गया आपको, कौन से लेयर पे, लेयर 2 पे क्या जब बनेगा, लेयर 3 पे क्या पैकेट बनेगा. ठीक है. और एक मोटी मोटी बात पता लगी कि जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन भेज रहे हैं, तो सोर्स और डेस्टिनेशन IP अगर चेंज होते गए तो पता कैसे लगेगा. यहाँ से मैंने सोर्स बोला, डेस्टिनेशन या वहां जाके चेंज हो गया, तो फिर उसने कैसे कर दिया चेंज, और उसने चेंज नहीं किया तो आगे कैसे पैकेट मूव हो रहा है. तो आई हैव टोल्ड यू इन लेयर 2 MAC एड्रेसेस इंटरचेंजिंग, वो चेंज होते चले जा रहे हैं, बट सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP विल रिमेन सेम. ओके. फॉर टुडे आई एम गोइंग टू एंड अप द सेशन. ओके. वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. देर मैं स्टॉप कर दे रहा हूं. तो YouTube पे डालेंगे.
यूट्यूब पे डाल, मैं यूट्यूब पे क्यों डालूंगा? मैं यूट्यूब पे क्यों डाल रहा हूँ? फिर कैसे मिलेगी? अच्छा आप तो